નમસ્તે દર્શક મિત્રો, આજના આ સ્તવ્ય સ્પાઇન હોસ્પિટલના વેબિનારમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજનો વેબિનાર સ્પાઇન ઇન્ફેક્શન ઉપર છે અને હિન્દી અને ગુજરાતી બંનેમાં વાર્તાલાપ કરી છે ડોક્ટર રવિ રંજન રાય. રવિ અમારી હોસ્પિટલના સ્પાઇન સર્જન છે અને તેઓ સ્પાઇન ઇન્ફેક્શન ઉપર વાત કરશે. વાત શરૂ થાય એ પહેલા અમારા ડોક્ટર દિનુભાઈ પટેલ સાહેબ, જે મારા ટીચર હતા, અત્યારે તેઓ શ્રી નથી, પણ એમની આ એક પુસ્તકમાંથી એક કવિતા વાંચું છું જે અમદાવાદ ઉપર છે અને ખૂબ સરસ છે કવિતા. પણ લઈ કે વિના સ્વાતંત્ર્ય નહીં પાછો ફરીશ કદી, પણ લઈ કે વિના સ્વાતંત્ર્ય નહીં પાછો ફરીશ કદી, કૂચ કરી ગયા દાંડી તરફ અહીંથી એક સવારે બાપુ. અમદાવાદમાંથી જે બાપુ દાંડી કૂચ કરી તે કૂચ કરી ગયા દાંડી તરફ અહીંથી એક સવારે બાપુ, સામે કોઈ ઓવારે દેહમાંથી સ્વહસ્તે કાઢી આપ્યા, સામે કોઈ ઓવારે દેહમાંથી સ્વહસ્તે કાઢી આપ્યા, અસ્થિ દધીચીએ ધર્મયુદ્ધ કાજે. તમને કદાચ ખબર હશે કે દધીચી બ્રિજનું નામ છે, ત્યાં આગળ જે બ્રિજ છે તે તમે કદાચ રિવરફ્રન્ટ ઉપર દોડતા હશો તો લખેલું છે, અસ્થિ દધીચીએ ધર્મયુદ્ધ કાજે. અહીં ક્યાંક વગડામાં પહેલા એક બળભાગી દિને, અહીં ક્યાંક વગડામાં પહેલા એક વડભાગી દિને, સાબરમતીએ જોયો બાદશાહના શ્વાન પર, સાબરમતીના કિનારા પર સાબરમતીએ જોયો બાદશાહના શ્વાન પર, ત્રાટકતો બહાદુર સસલો, ત્રાટકતો બહાદુર સસલો. ભૂમિ છે આ પ્રવાસી, દ્રઢ મનોબળ ત્યાગ ને હિંમતની. ભૂમિ છે અમદાવાદની પ્રવાસી, અમદાવાદની ભૂમિ, દ્રઢ મનોબળ ત્યાગ ને હિંમતની. દ્રષ્ટાંત બતાવ્યા માત્ર 3 તને, ખુલ્લા ચક્ષુએ ફરતા પ્રતિદિન અહીં જોઈશ તું આવા કિસ્સા. આપું છું તને ભરીને મુઠ્ઠી, આપું છું તને ભરીને મુઠ્ઠી, પવિત્ર ધૂળ અમદાવાદની, પવિત્ર ધૂળ અમદાવાદની. ફેંકતો રહેજે વાહનની તારી બારીમાંથી ચપટી ચપટી, ફેંકતો રહેજે તારા વાહનની બારીમાંથી ચપટી ચપટી. ફેલાવજે સંદેશ અમારો, અમદાવાદના માટે છે આ, ફેલાવજે સંદેશ અમારો, દ્રઢતા ત્યાગ અને હિંમતનો, દ્રઢતા ત્યાગ અને હિંમતનો, પરિભ્રમણમાં તારા દુનિયાભરમાં. એટલે પરિભ્રમણ કરતા કરતા ચપટી ચપટી માટીને વેરવી, અને અમદાવાદની માટી જે ખરેખર ખૂબ દ્રઢતા આપણને આપે છે. અને આવું જ કંઈક સ્પાઇન ઇન્ફેક્શન માટે કોરિલેટ થઈ શકે કે સ્પાઇન ઇન્ફેક્શનમાં ખરેખર શું જરૂરી છે. કન્સિસ્ટન્ટ ટ્રીટમેન્ટની જરૂર છે, કન્સિસ્ટન્ટ સારવારની જરૂર છે, અને जो जरूरी है ते बाबते आज बात करशे डॉक्टर रवि रंजन. तो हम बात कर रहे हैं अब स्पाइन इन्फेक्शन के लिए. डॉक्टर रवि रंजन बता रहे हैं कि स्पाइन इन्फेक्शन में कैसे क्या करना है, और बाद में अगर आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं तो आप चैट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देंगे. सो ओवर टू रवि, प्लीज कैरी ऑन रवि. થેન્ક યુ સર. ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન. બધાને ખૂબ ખૂબ નમસ્કાર. બહુ ઇન્સ્પાયરિંગ કવિતા સાથે આજે સાહેબે શરૂઆત કરી આજના વેબિનારની. સો હોપફુલી ઇટ વિલ બી અ ફન. આજે આપણે જેમ સાહેબે કીધું વાત કરીશું ઇન્ફેક્શન, સ્પાઇન ઇન્ફેક્શન માટે. ચેપી રોગ એ ભારત જેવા પ્રગતિશીલ દેશો માટે બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. આ આપણી આરોગ્ય વ્યવસ્થા ઉપર બહુ મોટો બોજો ચેપી રોગોના કારણે છે. મારા જે મિત્રો યુકે અને યુએસમાં કામ કરે છે એ પાછા આવે તો એ લોકોને સરપ્રાઈઝ લાગે કે અહીંયા આટલા બધા તમે લોકો કેવી રીતે ચેપી રોગો છો, અમારે ત્યાં તો છે જ નહીં. એટલે આ કદાચ ભારતમાંની તકલીફ વધારે છે બીજા દેશો કરતા, પણ આપણા દેશમાં છે એટલે સમજવું, એને જાણવું બહુ જરૂરી છે. આપણા દેશના મૃત્યુ દરમાં બી ઇન્ફેક્શન, ચેપી રોગોનો ખાસો યોગદાન રહે છે, અને એક એવો ચેપી રોગ જ છે કોરોના વાયરસ, જેને આખા વિશ્વને હવે બંધ કરીને લોકડાઉન કરી નાખ્યું છે. તો આ એના સિવાય બીજા કયા ચેપી રોગો છે જે ખાસ કરીને સ્પાઇનમાં થાય છે એની વિશે વાત કરીશું. એના વિશે વધારે જાણીશું કે કેવી રીતે સ્પાઇન સુધી પહોંચે છે, એને કેવી રીતે રોકી શકાય, અટકાવી શકાય, એના શું લક્ષણો હોય એના વિશે વાત કરીશું.
તો સ્પાઇન સુધી કેવી રીતે तो शरीर के मध्य में होता है हमारा स्पाइन करोड़रज्जु। तो वो स्पाइन तक हमारे जीवाणु कैसे पहुंचते हैं, आगे बात करेंगे कि इसके क्या लक्षण होते हैं और डॉक्टर को हमें कब दिखाना जरूरी हो जाता है, अर्जेंट हो जाता है, कब डॉक्टर के पास हमें पहुंचना चाहिए, और इसके बाद इसकी सारवार के बारे में आगे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कि कैसे ये स्पाइन तक पहुंचता है, यानी कि मोड्स ऑफ स्प्रेड। तो उसमें से जो सबसे कॉमनली जो देखा जाता है स्पाइन में, वो पहुंचता है खून के रास्ते से। पहले इन्फेक्शन स्पाइन में नहीं होता। इन्फेक्शन की शुरुआत होती है लंग्स में यानी फेफड़े में, या यूरिनरी ट्रैक में यानी पेशाब की जगह पे, या और किसी जगह पे, और वहां से ये खून के रास्ते स्पाइन तक पहुंचता है। जैसे कि ये चित्र में आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो इन्फेक्शन है वो फेफड़े में से निकल के रक्त की नलियों में जाता है और वहां से स्पाइन तक पहुंचता है। हमारे स्पाइन में काफी सारी खून की नलियां होती हैं, जिन्हें बेटसन्स प्लेक्सस ऑफ वेन्स बोलते हैं। ये खून की नलियां डायरेक्ट कनेक्टेड रहती हैं हमारे आंतड़ों के खून की नलियों से, इसलिए आंतड़ों में कोई भी इन्फेक्शन हुआ या उस पेशाब की जगह में कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो वो बहुत आसानी से जल्दी से स्पाइन तक पहुंचने की संभावना रहती है। दूसरा जो कॉमन मेथड देखा गया है स्प्रेड का यानी फैलाव का, वो है डायरेक्ट स्प्रेड। जैसे कि ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर ये स्पाइन है लगभग बीच में, और इसके आसपास दो फेफड़े हैं। तो अगर कोई इन्फेक्शन फेफड़े में होता है, वैसे तो ये फेफड़े की जो लाइनिंग है, जो दीवारें हैं, वो मजबूत होती है, वहां से इन्फेक्शन नहीं जा पाता। लेकिन अगर जीवाणु और इन्फेक्शन के कारण ये पूरा परू बन जाता है और विध्वंस हो जाता है, तो यहाँ से इन्फेक्शन डायरेक्ट स्प्राई में जा सकता है। इसे कहते हैं डायरेक्ट स्प्रेड। और तीसरा जो कॉमन मेथड सुना जाता है, देखा जाता है, वो है आइट्रोजेनिक। आइट्रोजेनिक का मतलब है कि हमारे कोई इंजेक्शन देने की वजह से या कोई सर्जिकल प्रोसीजर करने की वजह से, कोई ऑपरेशन या सर्जरी के कारण इन्फेक्शन शरीर के अंदर प्रकट हुआ और वहां से फैला है। इसे कहते हैं आइट्रोजेनिक। हालांकि पूरे स्पाइन इन्फेक्शन की क्षेत्र में देखा जाए तो ये आइट्रोजेनिक का रोल बहुत ही छोटा और कम है, लेकिन क्योंकि हम सर्जन हैं और सर्जरी करते हैं, इसीलिए हमारे लिए आइट्रोजेनिक बहुत ही गंभीर समस्या हो जाती है। पहले के मुकाबले, आज से 20 साल पहले के मुकाबले देखा जाए तो आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन यानी प्रोसीजर सर्जरी के कारण जो इन्फेक्शन होता है, उसमें काफी हद तक कमी आई हुई है। उसका कारण है कि हमारे पास अब पहले से कई गुना बेहतर काम करने वाली एंटीबायोटिक्स हैं, जो हम प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक के रूप में देते हैं। प्लस हमारा ऑपरेशन थिएटर में काफ़ी सारे सुधार आ गए हैं। आजकल हमारे पास लैमिनर एयर फ्लो है और हेपा फिल्टर्स हैं, जो वायरस और बैक्टीरिया को फिल्टर करके हवा डायरेक्ट देते हैं, कंटिन्यूअस हवा का सर्कुलेशन रहता है। इन सब कारणों से इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हुए हैं, लेकिन फिर भी ज़ीरो नहीं हुए हैं। अभी भी भारत में या विश्व में कहीं भी जाएँ, 1 to 2% इन्फेक्शन के चांस रहते हैं। इसमें से मैक्सिमम इन्फेक्शन सुपरफिशियल होते हैं, गंभीर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ गंभीर हो सकते हैं। इनमें के बारे में आगे हम जानेंगे। ऑर्गेनिज्म, कोई भी इन्फेक्शन या चेपी रोग है, उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उस बारे में समझना, वो है उसके कीटाणु, यानी कि ऑर्गेनिज्म। उसका कीटाणु कौन-सा है? कीटाणु के बारे में, कीटाणु किस प्रकार का है, उसकी दीवार किस तरह की बनी हुई है, उसकी रचना किस तरह से है, उसकी क्या कमज़ोरियाँ हैं, ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि उसके बेसिस पर ही उसका डायग्नोसिस होगा, यानी कि उसको स्टेनिंग करना है या किस तरह से उसको हम पहचान सकें। पहला चीज़ होता है डायग्नोसिस, निदान करना, पहचानना।
और उसके बाद कौन सी दवाई किस तरह से उस पे काम करेगी ये समझना। इसीलिए ऑर्गेनिज्म पे सबसे ज्यादा स्टडी होती है। आजकल देखा जाए तो कोरोना वायरस जो फैल रहा है उसमें भी जितनी भी आप स्टडीज सुनेंगे सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही स्टडी हो रही है। जो जहां से कहा जा रहा है कि ये वुहान लैब से निकला था, वहां ये ऑर्गेनिजम्स की ही स्टडी होती थी। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या है, कौन सा कीटाणु है, जीवाणु है जिसके कारण ये इन्फेक्शन हुआ है, ये हमारे सारवार की सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है। सब સૌથી પહેલો જે પગલો હોય એ ઓર્ગેનિઝમ આइडेंटिफाई કરવું પડે એ હોય। यहाँ पे मैंने दो चित्र बताए हैं। जो बाई तरफ है वो है एक टीबी का बेसिलाई जो होता है, टीबी जो जिससे होता है हमें के जीवाणु जो होता है उसका एक फोटो दिया गया है। स्पाइन इन्फेक्शन में टीबी का रोल सबसे बड़ा है, इसीलिए सबसे ज्यादा बातें टीबी के बारे में ही होगी। और इस तरह का टीबी का जीवाणु होता है जो हमें माइक्रोस्कोप में दिख सकता है। और उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके ऊपर उसकी वॉल जो है, उसकी जो दीवार बनी रहती है, कवच जो है वो माइकोलिक एसिड से होता है, उससे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और हमारी दवाइयाँ उस पर काम करती हैं। इस तरह से टीबी का इलाज होता है। और दूसरी तरफ जो डायग्राम है ये ई कोलाई का है। ई कोलाई करके एक ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारे पेशाब के रास्ते में ज्यादा दिखता है। और अक्सर जो इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक से आया है यानी कि पेशाब के रास्ते से आया है उसमें इकोलाई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी तरह के कुछ और ऑर्गेनिजम्स हैं, क्लेप्सिला है, और स्यूडोमोनास है जो दूसरे रास्ते से आते हैं। जो सर्जरी के कारण या कोई इंजेक्शन या प्रोसीजर के कारण इन्फेक्शन होते हैं उसमें अलग तरह के जीवाणु होते हैं, खास करके जो चमड़ी पे रहते हैं जैसे स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडिस। ये सब जीवाणु के कारण स्पाइन में इन्फेक्शन हो सकता है। क्लिनिकल केसेस से हम चर्चा शुरू करेंगे तो समझना आसान हो जाता है कि किस तरह का प्रेजेंटेशन होता है या क्या लक्षण होते हैं स्पाइन इन्फेक्शन के। तो पहला जो केस हम देखने जा रहे हैं, 40 वर्षीय महिला हैं जो हमारे पास आई और हमारे क्लिनिक में इस तरह से वो बैठी थी, यानी कि अपने माथे को अपने दोनों हाथों से सहारा देते हुए वो बैठी थी। वो अपने हाथ को हटा नहीं सकती थी क्योंकि उनका कहना था कि गर्दन में काफी दर्द है और जैसे ही वो हाथ हटाती है उनका मस्तक जो है वो स्थिर नहीं रहता, वो गिर जाएगा। एक दूसरी चीज इससे के साथ साथ जो होता था वो है जैसे ही मस्तक गिरता है, छोड़ती है वो मस्तक को, दोनों हाथों और दोनों पैरों में करंट जैसा सेंसेशन आता है। इससे हमें ये पता चला कि ये स्पाइन का इन्फेक्शन वेरी मच लाइकली संभवित है और जिसके कारण नस दबने से ये एक चीज हो सकती है। तो हमने एक्सरे लिया, लेकिन देखिए एक्सरे में अगर ध्यान से देखें तो हमें खास कुछ तकलीफ नजर नहीं आ रही। और नेक्स्ट स्टेप था हमारा एमआरआई। एमआरआई की इमेज को थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो दिख रहे हैं चौरस, ये हमारे मड़के होते हैं यानी हड्डियां होती हैं स्पाइन की आगे और पीछे। और इसके बीच में जो ये काली नली जा रही है ये मस्तिष्क है, ब्रेन है हमारा। यहाँ से जो काली नली जैसा निकल रहा है ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। और ये आगे जो हमारी हड्डी है ये पूरी तरह से खत्म हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है। और इसमें ये जो सफेद दिख रहा है ये परु है, पस है, पस भर गया है। तो इनका जो है डायग्नोसिस हमें एमआरआई करने से पता चलता है। ये इस एरिया को टीवी जंक्शन बोलते हैं। जैसे पिछले वेबिनार्स में आप लोगों ने देखा होता होगा, जब हमने सर्वाइकल की बात की थी तो हड्डियों के बारे में डिटेल में हमने समझा था। तो ये ऊपर का जो भाग होता है इसे क्रेनियो वर्टिब्रल जंक्शन बोलते हैं, यानी मस्तिष्क, खोपड़ी और करोड़रज्जु का जो जंक्शन है वो एक्सरे में देखना बड़ा ही मुश्किल होता है। खास करके इन्फेक्शन में जब तक डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा ना हो जाए तब तक एक्सरे में नहीं दिखता है। इसीलिए एमआरआई बहुत ही उम्दा और कार्यरत वस्तु है इस चीज का निदान करने के लिए। और एमआरआई के आने के बाद फाइन की प्रैक्टिस इसीलिए काफी हद तक बदल गई है क्योंकि अब हमें एक्चुअली पता चल पा रहा है जल्द से जल्द कि क्या अंदर चल रहा है।
इन्फेक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें जल्द निवारण, निदान से काफी फायदा पड़ जाता है सारवार में, आगे की ट्रीटमेंट में। तो और केस देखते हैं। 32 वर्षीय महिला, ये जॉब कर रही थी महिला, और ये हमारे पास ये तकलीफ लेके आई कि पीठ और कमर का दर्द जो है इनको काफी दिनों से था, लेकिन कुछ 1 महीने से इनको चलने में दिक्कत आने लग गई है, और 3-4 दिन से असंतुलन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बिना लकड़ी या किसी सहारे के ये खड़े नहीं हो पा रही हैं, चल नहीं पा रही हैं। दोनों पैरों में भारीपन जैसा रहता है। जब डिटेल में पूछा गया तो पता चला कि एक बार बुखार भी आया था 1 महीने पहले, और हल्की फुल्की सर्दी खांसी भी है। एमआरआई लेने पे हमें ये दिखाई देता है कि ये स्पाइन है, ये जो चौरस है, मड़के हैं, और यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। और अगर इस भाग को आप देखें, इस भाग को देखें तो सॉरी, तो ये हड्डी जो है ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है, खराब हो गई है, और इसके कारण जो पस और हड्डी का भाग है वो पीछे करोड़रज्जु पर दबा रहा है। जैसे कि यहाँ देखें, करोड़रज्जु के आगे और पीछे सफेद पानी जैसा है, यानी काफी जगह है इसके लिए, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल जगह नहीं है। पूरी तरह से करोड़रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड दब चुका है, जिसके कारण इन महिला को चलने में असंतुलन हो रहा है, पैरों की कमजोरी आ रही है। एक और केस देखते हैं। 40 वर्षीय पुरुष हैं हमारे सामने, हमारे ओपीडी में आए कमर का दर्द लेके। इनको चलने में कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन केवल कमर का दर्द था जो 2 महीने से ठीक नहीं हो रहा था। काफी दर्द की दवाई ली और इधर उधर गए, लेकिन उसके बावजूद भी ठीक नहीं हुआ। और एमआरआई जब लिया गया तब हमने ये देखा कि उनका L3 और L4 के बीच में जो डिस्क है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है। उसके ऊपर और नीचे के मड़के में जो है वो इन्फेक्शन के चिन्ह दिख रहे हैं हमें। तो ये जानेंगे कि किस व्यवस्था में हमें तुरंत डॉक्टर के सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, एमआरआई या इस तरह से डॉक्टर की सलाह के बाद। खास करके जो दर्द 6 हफ्ते से ज्यादा चल रहा हो, कमर का, पीठ का, गर्दन का दर्द अगर 6 हफ्ते से भी ज्यादा चल रहा हो, तो दर्दी की उम्र 18 से नीचे या 50 के ऊपर हो तो खास करके जल्द करके डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। गिर गए हैं, चोट लगा है, ऐसा कोई हिस्ट्री है तो, या फिर बुखार आ रहा है, वजन कम हुआ है, या भूख कम लग रही है, इस तरह के चिन्ह जो हैं ये इन्फेक्शन या गांठ, ट्यूमर, इस कोई अंदर कोई भीतर गहरी बीमारी है, इसका निशान है। रात को दर्द होना अमूमन सामान्य जो मोच आ जाती है, कमर का दर्द होता है, वो रात को जब दर्दी आराम करते हैं तो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर रात को आराम करने पर भी दर्द जारी रहता है तो इसका मतलब है अंदर कुछ अजीब चल रहा है, जिसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। कुछ गंभीर व्यवस्था है जिसको हमें और ज्यादा समझने की और जानने की जरूरत है। और छठी चीज जो है प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। इसका मतलब है कि हाथ में या पैर में कमजोरी आना, पेशाब का रुक जाना, या पेशाब आता है पता नहीं चलता है, इस तरह की कोई तकलीफ अगर होती है तो ये अर्जेंटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। इन्हें हम रेड फ्लैग्स कहते हैं। यानी इस तरह के कोई भी चिन्ह आप अपने में या अपने आस 35 वर्षीय पुरुष थे जिनका एक ऑपरेशन हो चुका है, L4-5 में ऑपरेशन हो चुका है, और इसके बाद 6 महीने हो गए हैं लेकिन कंटिन्यूअस दर्द चालू ही है। इस तरह के सिचुएशन में डेफिनेटली इन्फेक्शन सस्पेक्ट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। और जैसा हम इसमें देख रहे हैं, कुछ निशान हमें दिख रहे हैं इन्फेक्शन के। आगे क्या करना चाहिए? तो खास करके ऑपरेशन के बाद अगर हमें जख्म में से पानी या परु निकलता हुआ दिखे, या इन्फेक्शन या प्रोसीजर के बाद
दर्दी को तीसरे दिन के बाद भी पहले 3 से 4 दिन कोई भी ऑपरेशन के बाद सामान्य बुखार हो सकता है। वो इन्फेक्शन का चिन्ह नहीं होता है। वो एनेस्थीसिया की दवाइयों के कारण और ऑपरेशन के कारण बुखार रह सकता है। लेकिन पहले 3-4 दिन के बाद भी अगर दर्दी को बुखार आता है 100 डिग्री से ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई इन्फेक्शन है। ऑपरेशन के बाद अगर दर्दी को कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी पेशाब की नली में इन्फेक्शन, कोई ज़ख्म हुआ हो जिसका इन्फेक्शन हो, या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं यानी जिनकी इम्यूनिटी कम है, या तो किसी बीमारी के कारण या जन्मजात, ऐसे लोगों में खास करके ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन का। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं कोई भी चेपी रोग हो या खास करके स्पाइन का रोग हो? तो पहला चीज होता है डायग्नोसिस कंफर्म करना। खास करके चेपी रोग में डायग्नोसिस, एग्जैक्ट डायग्नोसिस पता होना जरूरी है, तभी हम उसकी एग्जैक्ट दवाई दे पाएंगे। क्योंकि जैसा हम देखेंगे बहुत सारे ऐसी कीटाणु हैं, जीवाणु हैं जो इन्फेक्शन कर सकते हैं, और सभी के लिए दवाई अलग अलग है। इसीलिए एग्जैक्ट डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। डायग्नोसिस निदान के लिए हम लोग खून की जांच कराते हैं, उसके बाद एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, जिस तरह की ज़रूरत हो वो। और सबसे महत्वपूर्ण जो निदान के लिए चीज़ है वो है बायोप्सी। बायोप्सी के बारे में आगे बात करेंगे। एक बार हमारा निदान डायग्नोसिस कंफर्म हुआ, नेक्स्ट स्टेप और द ट्रीटमेंट इज एंटीबायोटिक्स यानी कि दवाई। कोई भी चेपी रोग का इलाज जो है, इन्फेक्शन का इलाज जो है, वो दवाइयों से ही होता है, एंटीबायोटिक्स से ही होता है। एंटीबायोटिक्स या अगर वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल्स, वही उसका मेन इलाज होता है। तीसरा भाग है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट कुछ ही लोगों को जरूरत पड़ेगी, किन लोगों को और किस व्यवस्था में जरूरत पड़ेगी वो हम आगे चर्चा करेंगे। बायोप्सी। बायोप्सी के बारे में चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। हमारे देश में खास करके टीबी इतना ज़्यादा कॉमन है, प्रख्यात है। सामान्य रूप से हर एक छोटे से छोटे क्लिनिक में भी जो डॉक्टर हैं वो देखते हैं, उसका निदान करते हैं और दवाई शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। टीबी के जीवाणु, सभी टीबी की दवाई एक जैसी नहीं होती, सभी टीबी के जीवाणु एक जैसे नहीं होते। दूसरी चीज़, जो बीमारी हमें एक्स-रे में या क्लिनिकली शारीरिक तपास करके हमें जो टीबी लग रहा है, हो सकता है वो टीबी ना भी हो, टीबी के अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि एमडीआर टीबी। एमडीआर टीबी का मतलब है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ये भी टीबी के ही जीवाणु हैं, लेकिन सामान्य तौर पर जो टीबी की हम दवाइयाँ देते हैं, ये उससे प्रभावित नहीं होते और उससे इनका इलाज नहीं हो सकता है। ये आइडेंटिफ़ाई तभी हो सकता है अगर हमने बायोप्सी किया हो। वैसे ही पायोजेनिक, पायोजेनिक का मतलब है कि टीबी के अलावा कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, जैसे हमने बात की पेशाब के रास्ते ई कोलाई का इन्फेक्शन होता है, या लंग्स में, फेफड़े में कोई इन्फेक्शन हुआ हो, वो खून के रास्ते पहुंचा हो, या लीवर में कोई इन्फेक्शन हो, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तीसरा चीज फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है कोई बीमारी या रोग के कारण, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। हेल्दी इंडिविजुअल्स में फंगल इन्फेक्शन यूजुअली नहीं होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। नियोप्लाज्म का मतलब है कर्क रोग, यानी कि कोई गांठ, कैंसर की गांठ या कोई सादी गांठ। कई बार ऐसा होता है कि एमआरआई में हमें टीबी जैसा लग रहा है, अगर हमने बायोप्सी किए बिना टीबी की ट्रीटमेंट दवाइयाँ चालू कर दी, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, वो कम नहीं हो रहा है, दोबारा एमआरआई किया तो वो बढ़ता जा रहा है। अगर ये इस नियोप्लाज्म निकला यानी कि कर्क निकला, तो ये 3-4 महीने हमने बर्बाद कर दिए। हमने गलत ट्रीटमेंट देकर दर्दी का समय भी बर्बाद किया और उसके ठीक होने के चांस भी कम कर दिए। इसी कारण बायोप्सी करना बहुत ज़रूरी है। एक चौथा 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों में जो देखा जाता है, ओस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर, यानी कि
हड्डी का फ्रैक्चर, हड्डी कमजोर होने से, उम्र के कारण हड्डी कमजोर होती है, उसके कारण भी फ्रैक्चर होता है। फ्रैक्चर के आसपास थोड़ा खून और थोड़ा पानी जमा होता है जो एमआरआई में टीबी जैसा लग सकता है, इसीलिए बायोप्सी करना जरूरी है। एक और कारण बताते हैं बायोप्सी का, हमारे सव्य हॉस्पिटल की ही ये स्टडी है, भरत सर और अजय सर की, जिसमें वो एंडरसन लीजन एक तरह का संधिवा का रोग होता है जो स्पाइन में भी होता है, जिसमें जिसकी हम थोड़े दिन पहले बात कर चुके हैं। इनकी स्टडी में ऐसे 10 से ज्यादा ऐसे केसेस थे जिनका शुरू में निदान एमआरआई और एक्सरे के बेसिस पर टीबी किया गया और टीबी की ट्रीटमेंट दी गई, लेकिन जब टीबी की ट्रीटमेंट से ये ठीक नहीं हुआ तो बाद में बायोप्सी करके ये पता लगाया गया कि ये तो एंडरसन लीजन था, यानी कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, टीबी की बीमारी थी ही नहीं। ऐसा ना हो, ऐसा होने से दर्दी को बहुत नुकसान होता है और ऐसा डॉक्टर हमारी रेपुटेशन को भी नुकसान होता है, इसीलिए बायोप्सी करना बेहद जरूरी है। अच्छा, बायोप्सी का जो नमूना हम लेते हैं, अंदर से पस निकालते हैं या हड्डी का कुछ भाग निकालते हैं, इसको कैसे भेजा जाए ये खास करके हमारे ओटी स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ के लिए समझना जरूरी है। बायोप्सी के लिए जो नमूना लेते हैं हम इन्फेक्शन में, वो 2 तरह के लेबोरेटरी में जाता है। एक होता है माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी, जहाँ पे जीवाणु के ऊपर काम होता है, जीवाणु को आइडेंटिफाई करने का काम होता है, या तो स्टेनिंग द्वारा, या तो पीसीआर टेक्निक द्वारा, या फिर उसको कल्चर में ग्रो करके। तो माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो सैंपल दे रहे हैं उसमें जीवाणु जीवित रहें, ये सुनिश्चित करना जरूरी है, इसीलिए माइक्रोबायोलॉजी लैब में हम जो सैंपल दे रहे हैं उसमें केवल सलाइन डालें और कुछ ना डालें। हमारे यहाँ सैंपल हम लोग लेते हैं, उसके 1 घंटे के भीतर लेबोरेटरी तक हम पहुंचा सकते हैं, इसीलिए कुछ भी ना डालें तो भी ठीक है। अगर हमें पस मिला है तो उसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्टली हम माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेज सकते हैं। दूसरा जो लैब में जाता है ये नमूना, वो है हिस्टोपैथोलॉजी लैब। हिस्टोपैथोलॉजी लैब में अगर हमें टिश्यू मिला है, सॉफ्ट टिश्यू मिला है या हड्डी का टुकड़ा मिला है, वो हिस्टोपैथोलॉजी लैब में भेजा जाता है। उसके वो लोग सेक्शन यानी कि बारीक कट करके माइक्रोस्कोप के अंदर वो लोग स्टडी करते हैं कि किस तरह के सेल्स हैं। ये सैंपल हमें फॉर्मेलिन में भेजना होता है। फिर से जैसा मैंने बताया, अगर 1 घंटे के अंदर हम बायोप्सी लेने के 1 डेढ़ घंटे के अंदर हम सैंपल को लेबोरेटरी तक पहुंचा सकते हैं तो फॉर्मेलिन भी डालने की जरूरत नहीं है, हम सीधे कंटेनर में रख के इस सैंपल को डायरेक्ट लेबोरेटरी में भेज सकते हैं। आगे इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, इसके लिए पहले ये समझ लें कि साइंस और सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं टीबी में। तो टीबी के जो पेशेंट हैं वो अक्सर प्रेजेंट करते हैं कमर का दर्द, जो भी कमर में, गर्दन में जहाँ पे दर्द है वहाँ पे दर्द की कंप्लेन करते हैं, घूमने में, बैठने में, चलने में दर्द होता है, या फिर वहाँ पे उनको कोल्ड एब्सेस हो सकता है। कोल्ड एब्सेस यानी परु जमा हो जाता है, या फिर साइनसिस। साइनसिस यानी कई बार परु अगर बहुत ज्यादा हो गया तो चमड़ी से फट के बाहर भी निकलने लगता है। दूसरी चीजें होती हैं जो है, जैसा हमने डिस्कस किया कि बुखार आता है, वजन कम होता है। तीसरी चीज होती है न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल यानी अब नस पे असर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि स्पाइन और नस बिल्कुल साथ साथ में जाती है। स्पाइन एक हड्डी की पाइप की तरह होता है जिसके बीच में से स्पाइनल कॉर्ड जाता है, यानी कि नसें जाती हैं। तो जैसे ही स्पाइन में इन्फेक्शन होता है, अफेक्शन होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव होने के पूरे पूरे चांस होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव होगा तो दर्द हो सकता है, मोटर डेफिसिट यानी कि पैरों में, हाथों में कमजोरी आ सकती है, टाइट हो जाते हैं, स्पास्टिसिटी, अगर बहुत ज्यादा स्पाइनल कॉर्ड पे कॉम्प्रेशन है, छूने पे एहसास पता नहीं चलेगा, और पेशाब की तकलीफ होती है, पेशाब या तो रुक जाता है या पेशाब होता है पता नहीं चलता है, इस तरह की तकलीफें हो सकती हैं। और एक चौथी चीज जो होती है, जो अक्सर थोड़ा लेट होती है, तुरंत नहीं होती है, वो है डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी यानी खुंद या टेढ़ापन।
इसमें काइफोसिस भी हो सकता है, स्कोलियोसिस भी हो सकता है, इसकी बात करेंगे आगे। तो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज मेडिकल, जैसा हमने डिस्कस किया। डायग्नोसिस के बाद जो मेन सारवार की पद्धति होती है वो है मेडिसिन ही होती है कोई भी इन्फेक्शन में, और वैसा ही स्पाइन के इन्फेक्शन में भी है। खास करके हम टीबी पे ज़्यादा जोर देना चाहते हैं क्योंकि टीबी का इन्फेक्शन हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। टीबी की मेडिकल ट्रीटमेंट जो है ये स्पाइन टीबी की 12 से 18 महीने कम से कम चलती है। एमडीआर टीबी की इससे ज़्यादा भी होती है, और ये आपके डॉक्टर आपका क्या रिस्पॉन्स है आपके टिश्यू का एक्सरे एमआरआई देख के ये डिसाइड करते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग यानी कि जिसको सामान्य तौर पे टीबी है, जो सामान्य तौर पे जो हम दवाई देते हैं, 4 दवाई का ये स्ट्रिप होता है, उससे रिस्पॉन्ड करती है। अब ये समझना ज़रूरी है कि ये यूजुअली जो 4 दवाई का स्ट्रिप होता है, हम लोग और हमारे फिजिशियन ये प्रेफ़र नहीं करते हैं। हमारे फिजिशियन डोज़ के हिसाब से, पेशेंट के वेट के हिसाब से हर एक टैबलेट का डोज़ डिसाइड करते हैं और हर एक को अलग-अलग डोज़ में लिखते हैं और उस तरह से प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये खास ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये इसका डोज़ेज बराबर हो, क्योंकि टीबी से लड़ने के लिए सबसे ज़रूरी हथियार जो हमारे पास है वो ये दवाइयाँ ही हैं। इस दवाई लेने में अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ, डोज़ में गड़बड़ हुआ या हम बीच में दर्दी ने 1-2 दिन नहीं ली, तो रेज़िस्टेंट डेवलप हो जाता है। इसका मतलब जो जीवाणु इस दवाई से उस पे असर हो रहा था, उस पे असर होना बंद हो जाएगा, और ये बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनता है, डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए। इसीलिए नियमित दवाई लेना ज़रूरी है। जो ये लाल कैप्सूल है, रिफैम्पिसिन की होती है, ये खाली पेट लेना ज़रूरी है, तभी वो एब्ज़ॉर्ब होता है। रिफैम्पिसिन के वजह से पेशाब जो है वो थोड़ा ऑरेंज केसरी रंग का या लाल जैसा लगता है दर्दी को, ऐसा ही होना चाहिए। अगर रिफैम्पिसिन लेने के बाद केसरी रंग का पेशाब नहीं हो रहा है, इसका मतलब दर्दी ठीक से दवाई नहीं ले रहा है। दूसरे भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दवाइयों के, जैसे कि लीवर पे इसका प्रभाव पड़ता है। इथैम्ब्यूटल करके एक दवाई होती है इसमें, जिसका प्रभाव जो है वो आँखों पे पड़ता है। इसीलिए हर महीने खून की जाँच करने का आपको सलाह दी जाएगी। आँखों में ख़ास करके लाल और हरा रंग का फ़र्क जो है वो सबसे पहले जाता है। इसीलिए दर्दियों को ये सेल्फ टेस्ट करने के लिए कहा जाता है कि आपको ऐसा कुछ भी प्रभाव लगे तो तुरंत बताया जाए, क्योंकि छोटे बच्चे ये नहीं बता पाते, इसीलिए 6 वर्ष से छोटे बच्चों में हम लोग ये इथैम्ब्यूटोल दवाई नहीं देते। नॉट टू मिस इवन अ सिंगल डोज, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जब हम टीबी की दवाई के बारे में बात करते हैं। दूसरे चेपी रोगों के बारे में भी यही सत्य है कि उनका भी सारवार ट्रीटमेंट रेगुलरली होना चाहिए। जिस प्रकार एंटीबायोटिक दी गई है इंजेक्शन द्वारा या मुँह से लेने टैबलेट गोली द्वारा, वो नियमित लेना ज़रूरी है। उसमें कुछ भी भूल-चूक हुई तो दोनों के लिए परेशानी का कारण बनता है। इन्फेक्शन में हमारे पास एक ही चांस मिलता है, द फर्स्ट चांस इज़ द बेस्ट चांस। एक बार एक दवाई से रेज़िस्टेंट हो जाए, उसके बाद दूसरी दवाई काम करेगी कि नहीं ये बहुत मुश्किल होता है, और दूसरी दवाई पहली दवाई से ज़्यादा हानिकारक होती है। हर हर बार यही देखा गया है। टीबी में भी जो फर्स्ट लाइन ड्रग है, उससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं सेकंड लाइन ड्रग के। इसीलिए फर्स्ट लाइन ड्रग जो है वो नियमित रिलीजियसली लेना चाहिए। ओके। टीबी हमारे देश में इतनी बड़ी बीमारी है कि इसके लिए भारत सरकार ने अलग-अलग कई प्रोग्राम चलाए हुए हैं जो पिछले 50 साल से चल रहे हैं। पिछले साल से इस प्रोग्राम का नाम चेंज करके नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम कर दिया गया है। ये हमारे देश में इतनी बड़ी बीमारी क्यों है ज़रा समझिए। 2019-20 के पूरे आंकड़े वेबसाइट पर नहीं आए हैं, इसलिए 2018 के आंकड़े बता रहा हूँ। 2018 में हमारे देश में 26,90,000 यानी कि करीब-करीब 27 लाख ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हुए। ये टीबी सिर्फ स्पाइन टीबी नहीं है, ये जो आंकड़े हैं ये लंग्स और शरीर में जितनी भी जगह टीबी होता है पूरा मिला के ये आंकड़े दिए गए हैं। और इनमें से
1,30,000 एमडीआर टीबी के पेशेंट हैं। एमडीआर टीबी यानी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, यानी वो टीबी के जीवाणु जो सामान्य, जो हमने अभी 4 दवाइयों की बात की, उस पे उनका असर नहीं होता है। तो उस इन एमडीआर टीबी के लिए हमें इससे ज़्यादा भारी दवाई देनी पड़ती है, जिसका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, ज़्यादा लंबे समय तक देनी पड़ती है और इतनी कारगर भी नहीं होती है। तो ये एमडीआर टीबी का इंसिडेंस भी इतना ज़्यादा है, इसीलिए बायोप्सी करना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें से करीब 4,40,000 लोगों की मृत्यु टीबी से हुई है, सिर्फ 1 वर्ष में, और हर वर्ष ऐसा ही होता है। टीबी प्लस एचआईवी दोनों को है। वैसे 9,700 दर्दियों की जो 2018 में हुई थी। तो हर वर्ष हमारे देश में करीब 4.5 लाख लोग टीबी के कारण मृत्यु हो रही है। ये हमारे जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है कोरोना वायरस, जिसके कारण हम सब कुछ लॉकडाउन करके बैठे हैं, उससे कहीं ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोविड-19 और टीबी के आंकड़े को मिलाया जाए तो करीब करीब टीबी का भी डेथ रेट 3% है, कोविड-19 का भी डेथ रेट बताया जा रहा है कि करीब करीब 3% ही है। लेकिन टीबी के जो हमारे मरीज हैं वो संख्या में कहीं ज्यादा हैं और कई सालों से ये चल रहा है। हम टीबी, हमारे पास वैक्सीन भी है, दवाई भी है। इन चीजों के बावजूद भी टीबी अभी भी इतनी बड़ी महामारी का कारण बनी हुई है। जितना जोर आज पूरे दुनिया की सरकारें कोरोना वायरस को खत्म करने में दे रही हैं, अगर हमारी सरकार इससे 10%, 10% भी जोर टीबी को खत्म करने में दे तो डेफिनेटली हमारे देश को बहुत बड़ा फायदा होगा। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत हमारी सरकार का ये ध्येय है कि 2025 तक एलिमिनेशन ऑफ टीबी किया जाए। एलिमिनेशन का मतलब है कि 1 लाख जनसंख्या में 1 से कम केस होना, जो कि अभी बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन इसके लिए सरकार ने कुछ एक्स्ट्रा फाइनेंशियल रिसोर्सेस दिए हैं और 2 नई दवाई भी आई है, बिडाक्विलिन डेलामेनाइड, जो अभी फिलहाल बहुत ही सीमित अस्पतालों में मुहैया कराई जा रही हैं, पर ये सरकार का प्लान है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया कराया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि टीबी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। अब सर्जरी की बात करें तो कब और क्यों सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है स्पाइन इन्फेक्शंस में? तो एक आपको एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लकड़ी की जो है सीलिंग है, दीवारें हैं, इन पर दीमक लगे हुए हैं। इनका इलाज हम करेंगे दीमक की दवाई छिड़क के। ठीक है? लेकिन ये जो नीचे वाला चित्र आप देखिए, दीमक इतने ज़्यादा लगे हैं कि लकड़ी को पूरा नुकसान पहुँचा दिया है, ये टूटने के कगार पे है और इसके सहारे जो ऊपर छत है, अगर ये टूटा तो छत भी टूटेगी। इस केस में हमें दवाई के साथ-साथ इधर पिलर्स भी लगाने पड़ेंगे, ताकि ये जो टूटा हुआ हिस्सा है, वो इसको सहारा दे सके और ये सीलिंग टूटे नहीं। कुछ इसी तरह का सिनेरियो होता है हमारे शरीर में भी। इन्फेक्शन के शुरुआती स्टेज में जब हड्डी का डिस्ट्रक्शन या हड्डी का जो टूटना है वो बहुत नहीं हुआ होता है, तब केवल दवाइयों से इसकी सारवार की जा सकती है और वैसे ही काफ़ी सारे दर्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब तकलीफ, बीमारी काफ़ी आगे बढ़ चुकी हो, हमने लेट डायग्नोसिस किया हो, नसों पे दबाव ऑलरेडी आ चुका हो, पैरों की कमज़ोरी शुरू हो गई है और बढ़ रही है, इस केस में हमें दवाइयों के साथ-साथ ऑपरेशन करके टूटी हुई हड्डियों को सहारा भी देना पड़ता है और जो नस पे दबाव है, वो हटाने के लिए भी ऑपरेशन करना पड़ता है। इसीलिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इन सिनेरियोज़ में सर्जरी होती है प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, यानी कि पैरों में कमज़ोरी आना शुरू होना, आपकी तकलीफ होना, अधिकतर दर्द होना जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, काफ़ी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन हड्डी का टूटना जारी है और दर्द नहीं ठीक हो रहा है। ऐसे कंडीशन में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। डिफ़ॉर्मिटी, डिफ़ॉर्मिटी यानी जैसा हम बता रहे थे
कि जैसे टीबी के इन्फेक्शन अफेक्ट करता है हड्डियों को, हड्डियां टूटने लगती हैं, कमजोर होती हैं और टूट के धीरे धीरे एक दूसरे के साथ सिमट जाती हैं। जिस तरह से ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, 3 हड्डियां सिमट के एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं और वैसा ही इधर भी हुआ है। और यहाँ एमआरआई में देखें तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जो सीधा होना चाहिए वो बिल्कुल इस हड्डी के कारण पूरा ये नोक पे ये दबा हुआ है। और इस तरह के दर्दियों को डिफॉर्मिटी के कारण यानी अ, इसके कारण करोड़रज्जु पे नस पे दबाव होने के कारण पैर में कमजोरी आने के चांस रहते हैं। इन केसेस में हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। स्पाइन एट रिस्क साइन क्या है बच्चों में? तो बच्चों में भी टीबी काफी देखा जाता है। अक्सर इनका इलाज दवाइयों से भी हो जाता है, लेकिन बच्चों की हड्डियां जो हैं वो अभी बढ़ रही हैं, बढ़ती हड्डियां होती हैं। तो जैसे जैसे ये हड्डियां बढ़ती हैं, जो डिफॉर्मिटी है वो धीरे धीरे बढ़ भी सकती है और सीधे भी हो सकती है। इसीलिए बच्चों को अगर टीबी होता है तो 6-8 महीने, 1 साल, 1.5 साल में जो ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है, उसके बाद भी हम हर साल उनको बुलाते हैं, उनका एक्स-रे लेते हैं या क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ये देखने के लिए कि उनका जो डिफ़ॉर्मिटी है वो बढ़ रहा है क्या? अगर डिफ़ॉर्मिटी बढ़ता है और इस तरह से जैसा कि फ़ोटो में दिखाया है, करोड़रज्जु पर स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव होना शुरू हो जाता है, तो उसको ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। और लास्टली वुंड वॉश एंड डिब्राइडमेंट फॉर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, जो हम सर्जरी या कोई प्रोसीजर के बाद इन्फेक्शन के चिन्ह देखते हैं, इस तरह के केसेस में हमें फिर से वुंड वॉश पानी से धोना, साफ करना घाव को, और उसमें जो भी गंदे अवशेष हैं उनको निकालना। इस तरह का छोटा-सा जो ऑपरेशन है वो अक्सर करना पड़ता है, जिससे हमें कल्चर भी मिल जाता है और जो हीलिंग रिकवरी प्रोसेस है वो भी जल्दी होता है। अब फिर से बात करें जो क्लिनिकल केसेस हम डिस्कस कर रहे थे उनके बारे में, तो ये पहली महिला थी जो हमने देखा था हाथ से सर को सहारा देते हुए, और इनके एमआरआई में हमने देखा था कि सीवी जंक्शन, क्रेनियोवर्टिब्रल जंक्शन यानी पहले और दूसरी हड्डी में सर्वाइकल स्पाइन की काफी इन्फेक्शन था, जिसके कारण करोड़रज्जु पर भी दबाव था। और इसका इस तरह से ऑपरेशन करके हमने उसको स्टेबलाइज किया, ये स्क्रू और ये रॉड के द्वारा। तो अब इनको ये पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्क्रू और रॉड के द्वारा पकड़ लिया गया है। ध्यान रखिए, इसके साथ टीबी की दवाई की तो आवश्यकता है ही, और ये बीमारी दवाई से ही ठीक होगी। ऑपरेशन केवल सपोर्ट करने के लिए है हड्डियों को। दूसरा केस जो हमने देखा था, 32 वर्षीय महिला थी। क्योंकि इनको करोड़रज्जु पे दबाव के साथ पैर में कमजोरी आ गई थी और कमजोरी बढ़ रही थी, इसीलिए ऑपरेशन करके जो करोड़रज्जु स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव था वो दबाव हटाने की जरूरत थी। उसके साथ साथ जो हड्डियां टूट रही थी उनको सपोर्ट करने के लिए इस तरह से स्क्रू और रॉड डालने की जरूरत पड़ी। तीसरा हमने केस देखा था जिनको केवल कमर का दर्द था। इस तरह के पेशेंट को हम यूजुअली कॉमनली बायोप्सी लेते हैं एक सुई द्वारा। यहाँ से जो भी परु मिलता है या हड्डी मिलता है उसकी जांच करते हैं, और जैसा मैंने आपको समझाया माइक्रोबायोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी लैब में उसे भेजा जाता है। उसका ग्रोथ होता है, उसमें ड्रग सेंसिटिविटी चेक होती है कि ये जो जीवाणु है वो टीबी के ही हैं या किसी इकोलाई के हैं या जिस भी रोग के हैं, और वो किस दवाई से कौन सी दवाई इस पे सबसे ज्यादा असरदारक है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। इन महाशय का भी ट्रीटमेंट इसी तरह से शुरू हुआ था, लेकिन क्योंकि उनका दर्द बढ़ता गया और बोनी डिस्ट्रक्शन बढ़ता गया, इसीलिए इनको भी सर्जरी की जरूरत पड़ी। और चौथा केस जो हमने देखा था, ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन हुआ था, जिसमें सिर्फ डिस्क प्रोलैप्स का ऑपरेशन किया गया था अहमदाबाद के बाहर कहीं। और ये दर्दी हमारे पास जब आए तब बहुत ज़्यादा दर्द में थे। इस तरह के पेशेंट को अक्सर फिक्सेशन से तुरंत राहत मिल जाती है, दर्द में आराम हो जाता है। जो ये बिस्तर पे लेट भी नहीं पा रहे थे, वो दूसरे दिन से चलने लग गए। और साथ में हमें जो यहाँ से सैंपल मिला उसमें कल्चर में ऑर्गेनिज्म जो मिलता है उसके हिसाब से हम एंटीबायोटिक्स शुरू कर सकते हैं, जिससे ये चेप जो है वो तुरंत कंट्रोल में आ जाता है।
तो एक बार फिर से हम सारे रेड फ्लैग्स देखेंगे, यानी किस कंडीशन में हमें और राह नहीं देखनी चाहिए, तुरंत डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए और एमआरआई या इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर सलाह देते हैं वो करना चाहिए। ड्यूरेशन मोर देन 6 वीक्स, यानी 6 हफ्ते से ज्यादा कोई दर्द कंटिन्यूस चल रहा है, दर्दी की उम्र 18 साल से कम है या 50 वर्ष से ज्यादा है, गिर गए हैं या चोट लगी है, इस तरह का कोई हिस्ट्री है, बुखार आना, वजन कम होना या भूख कम लगना, रात को सोते वक्त भी दर्द रहना और ज्यादा दर्द होना, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट यानी कि हाथ और पैर में कमजोरी आना और कमजोरी बढ़ना या पेशाब में कोई तकलीफ होना। इनको हम रेड फ्लैग्स बोलते हैं, जो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया जानकारी दिया आपने रवि, बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू सर। हाँ, बहुत अच्छे से बताया। आप स्क्रीन शेयर बंद कर यस सर। सकते हो? हाँ यस सर। प्लीज, थैंक यू। हाँ, थोड़े प्रश्न हैं। आपने अच्छे से बताया कि भाई लो इम्यूनिटी वाले पेशेंट्स को, लो इम्यूनिटी वाले सोसाइटी में सब लोगों को इन्फेक्शन की शक्यता ज्यादा होती है। तो और कौन से ऐसे होते हैं कि जिसमें इन्फेक्शन की शक्यता ज्यादा होती है? डायबिटीज वाले पेशेंट हैं, या जो लोग जिस किसी बीमारी के कारण स्टेरॉइड पर हैं, जैसे अस्थमा है या गठिया रोग है, या लंग्स के सीओपीडी है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनके कारण हमें स्टेरॉइड देना ही पड़ता है, जो लाइफ सेविंग होता है इन चीजों में। लेकिन स्टेरॉइड या इस तरह की इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां लंबे समय लेने के कारण हड्डियां भी कमजोर होती हैं और इम्यूनिटी भी कम होती है। हाँ। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको भी ज्यादा तकलीफ होने की संभावना होती है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफी कम हो जाता है। और जिन लोगों को रिनल फेलियर होता है उन लोगों भी वो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रहते हैं, उनको भी ज्यादा तकलीफ होती है। अपन आपने बायोप्सी के लिए बहुत अच्छे से बताया कि बायोप्सी करना चाहिए। तो हम हमारे हॉस्पिटल में बायोप्सी के लिए बताते हैं, तो आप उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए ना प्लीज, कि हम कैसे बायोप्सी करते हैं और हमारी ओर से क्या हमारी हमारी इनपुट रहता है इसमें। ओके। तो जैसा मैंने बताया, निदान में ब्लड इन्वेस्टिगेशन और रेडियोग्राफी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है चेपी रोग में, वो है बायोप्सी। बायोप्सी का सैंपल के ऊपर ही आगे का ट्रीटमेंट निर्भर करेगा, इसीलिए बायोप्सी को हम बहुत सीरियसली लेते हैं। पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में एक्सरे इमेजिंग, या फिर अगर जरूरत पड़े तो हमारे पास इंट्राऑपरेटिव सीटी स्कैन मशीन भी है। कुछ केसेस में जहाँ पे या तो जो लीजन है वो बहुत ही छोटा है, तो हमें सीटी स्कैन में भी ले सकते हैं, और हमने कई सैंपल सीटी स्कैन में भी लिए हुए हैं। पर यूजुअली हम लोग एक्सरे मशीन के द्वारा, एक्सरे मशीन में देखते हुए नीडल इस तरह से डालते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा सैंपल मिले, जहाँ जिससे हमें जीवाणु मिल सके और साथ में हड्डी का टुकड़ा मिल सके, जिससे हमें निदान करने में आसानी हो। परफेक्टली सेड। दी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बायोप्सी में वो सैंपल लेना। आप एक ही चीज समझो कि स्पाइन सर्जन के सिवा और कौन स्पाइन में से बायोप्सी अच्छे से ले सकता है, क्योंकि हमें मालूम है कहाँ जाना है, कैसे जाना है और किस तरीके से जाना है। इसलिए बायोप्सी करना है तो हमारी तो एक ही उम्मीद रहेगी हमारे पेशेंट से कि भाई बायोप्सी स्पाइन सर्जन से करवाए, ताकि हम सही पॉइंट पे सही जगह से हम बायोप्सी ले सके। जैसे रवि भाई ने बताया कि हम सीटी स्कैन और इमेज इंटेंसिफायर एक्सरे मशीन में देख के बायोप्सी करते हैं, और अगर जरूरत हुई तो वही जगह पे दोबारा जाके भी बायोप्सी कर सकते हैं, वही वक्त वही समय पे। अम, सब लोग जानते हैं कि टीबी की बीमारी इंडिया में काफी है, तो हम टीबी को रेड किंग कहते हैं। रेड किंग इसलिए कहते हैं कि टीबी को जब हम जेडन स्टेन करते हैं तो वो लाल दिखता है, क्योंकि इसके आसपास में जैसे कोरोना में लिपिड है, आउटर लेयर, इस तरीके से इसको भी आउटर लेयर लिपिड रहता है। इसकी वजह से इसको रेड किंग कहते हैं जब हम जेडन स्टेन करते हैं। हम इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट के पास भी भेजते हैं, तो आप उसके बारे में भी थोड़ा रवि बताइए ना कि इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट का रोल क्या होता है और कैसे हम भेजते हैं प्लीज।
जी सर। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि निदान के बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट होता है एंटीबायोटिक, जो सभी पेशेंट्स को दिया जाता है, एंड दिस इज द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब यही हमारी सारवार और ट्रीटमेंट का सबसे मुख्य, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो यही है, दवाइयाँ। दवाइयाँ सही जाए, ये बहुत ज़रूरी है। कॉमन जो इन्फेक्शंस होते हैं उनकी दवाइयाँ हम ही देते हैं, लेकिन अगर अनकॉमन इन्फेक्शन है या जो कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो कॉमन एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं उससे प्रभावित नहीं होते, उससे सेंसिटिव नहीं होते, तो हमें ज्यादा भारी दवाई देने की जरूरत पड़ती है। ये भारी दवाइयों का मतलब ये है कि उसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं। इस तरह के केसेस में हम इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनकी मदद लेते हैं, क्योंकि उनका नॉलेज जीवाणु के बारे में और दवाइयों के बारे में, उनका कॉम्प्लिकेशंस हैंडल करने के बारे में हमसे बेहतर उनका नॉलेज रहता है। इसीलिए उनकी मदद के साथ हम इस तरह के इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, जैसे सेकेंड लाइन ट्यूबरकुलोसिस है या इस तरह के और भी पायोजेनिक फंगल इन्फेक्शंस हैं। थैंक यू। अजय भाई, अ, आप बताइए छोटे बच्चों की टीबी के बारे में, क्योंकि आप इसके बारे में ज्यादा कुछ बता सकते हैं, प्लीज बताइए ना। या छोटे छोटे बच्चों की टीबी के बारे में हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे पेशेंट्स को बुलाने चाहिए, कब सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं? रवि ने टच किया है, रवि ने बताया है, लेकिन आप भी बताइए कि छोटे बच्चे की टीबी के बारे में क्यों, क्या तकेदारी रखनी चाहिए? छोटे बच्चों का टीबी, काफ़ी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो बच्चे होते हैं, टीबी का सिर्फ रोग होता है, इन्फेक्शन होता है कमर में, जो पहले दर्जे में अगर उसको हम अ, वयस्क लोगों के साथ कंपेयर करें तो वो ऑपरेशन के लिए फिट नहीं होते हैं। उसका कारण ये होता है कि वयस्क लोगों में ऑपरेशन का कारण हम बताते हैं जब अस्थिरता होता है और उसी तरह से साथ में नस के ऊपर दबान होता है। ये कंडीशन में ही टीबी के रोग में या इन्फेक्शन के रोग में सर्जरी करने की जरूरत पड़ती होती है। बट छोटे बच्चे जो होते हैं, खास करके 11 से 8 साल से छोटा उम्र में जब बच्चों को टीबी होता है, उसमें एक और चीज देखी जाती है। इन दो कारणों के अलावा ऐसे चिन्ह होते हैं एक्सरे में, एमआरआई में, जो अपने को आगाह करते हैं कि भले ही टीबी अभी दवा से मिट जाए, आज से 5 साल के बाद में या 10 साल के बाद में या 15 साल के बाद में जब कमर का आकार पूर्ण वयस्क का रूप लेगा, तब वो नस को नुकसान पहुंचा सकती है। मेरा कहने का मतलब है, छोटे बच्चों का कमर छोटा होता है और छोटे मड़के होते हैं, जिनके टीबी हो जाने की वजह से उसके कुछ भाग जुड़ जाते हैं। जब शरीर का कोई स्तंभ अपनी विकसित होने की क्षमता रखता है आगे से और पीछे से, दोनों भाग से, तो हम सब जैसे जैसे उम्र के साथ बड़े होते हैं तो सीध में ऐसे बड़े होते हैं। लेकिन जब टीबी या कोई इन्फेक्शन का रोग होता है जो खासकर आगे के मड़कों के भाग में होता है, तो आगे के मड़के इन्फेक्शन की वजह से बिगड़ जाते हैं और जैसे ही डॉक्टर, सर्जन, फिजिशियन, पेडियाट्रिशियन दवा देते हैं तो टीबी धीरे धीरे करके पूर्ण सूख जाता है। उसके बावजूद आगे 8, 10, 15, 25 साल के बाद में क्या होता है, जैसे जैसे ये मड़का अपनी लंबाई धीरे धीरे लेता है, आगे का भाग चिपक जाने की वजह से पीछे का भाग धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वो खूंद का रूप ले लेता है। और ये चीज स्पाइन सर्जन को ही पता होती है कि कौन से टीबी के कितना व्यापक टीबी होगा तो ये आगे जाके खून का रूप ले सकता है। और ये एक बहुत बड़ा गलती बहुत पीडियाट्रिशियंस, बहुत ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, बहुत न्यूरो सर्जन्स, बहुत जनरल फिजिशियंस कर बैठते हैं, क्योंकि टीबी को मिटाने के लिए जो दवा है वो टीबी को संपूर्ण मिटा देता है। पर टीबी अकेले मिटाना से अलावा दूसरी जो परेशानी अभी बच्चों में खड़ी है वो है
ग्रोथ मतलब उसके कमर का जो आगे जाके वो बड़ा होता जा रहा है और उसकी लंबाई जो आ रही है कमर से, और वहां पे अगर खून हो जाता है तो अपने हमारे लिए बहुत बड़ी विपदा कर देता है, क्योंकि आगे जाके जो खून होता है उसमें ऑपरेशन करना, वो छोटे बच्चों में टीबी में जो ऑपरेशन करना है उसके मुनासिब बहुत ही ज्यादा जोखिमी और बड़ा ऑपरेशन और खर्चालू होता है। तो ये चीज इसीलिए बच्चों को कभी भी टीबी हो तो एक बार कमर के सर्जन, अपने नजदीक के जो कमर के सर्जन है उनको एक बार बता के आना जरूरी है कि मुझे कमर का टीबी है, हमारी दवाई चल रही है। हमको इतना जस्ट आगाह कर दो कि यहाँ इसमें आगे जाके ऑपरेशन की गुंजाइश या खून आने की गुंजाइश है कि नहीं। बहुत अच्छा है बताया अजय भाई ने। कई सवाल हैं हमारे पास, उसमें एक सवाल ये है कि टीबी की दवाई कब तक चालू रखनी चाहिए। तो हम लोग दवाई के लिए बताते हैं कि 9 महीना तो कम से कम रखना ही चाहिए, कई बार 12 महीना भी करते हैं, कई बार 15 महीना भी करते हैं। हम लोग अभी फिलहाल क्या करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी में कि MRI करवाते हैं, पेशेंट्स के खून के रिपोर्ट करवाते हैं, वो उनका हीलिंग कितना अच्छा हुआ वो देखते हैं, इसके बाद में टीबी की दवाई का डिसीजन लेते हैं। कई बार हम लोग इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट से भी बात करके फिर टीबी का डिसीजन लेते हैं। दूसरा, साइड इफेक्ट्स के बारे में प्रश्न पूछा है, तो टीबी की साइड इफेक्ट्स काफी सारी होती है टीबी की दवाई की। कई दवाई ऐसी होती है कि पेशाब सबसे पहले सोचो तो लाल होता है, तो उसके बारे में सब लोग दूसरे दिन आते हैं सुबह में, साहब मेरा पेशाब में तो खून आना शुरू हो गया। तो वो नॉर्मल चीज होती है। जो रिफाम्पिसिन करके गोली है, जो सबसे पहले खाली पेट लेते हैं, लाल कलर की गोली, वो गोली जैसे बीट से रूटीन में अगर बीट लो आप तो लाल पेशाब, लाल टट्टी होती है, इसी तरह ये गोली से लाल पेशाब होता है, तो उसके बारे में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे साइड इफेक्ट में लिवर की साइड इफेक्ट होती है, जॉन्डिस होने की संभावना होती है, लिवर के एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, तो वो सब में वॉमिटिंग होती है। तो वो सब क्या करते हैं, जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो अगर वॉमिटिंग होती है तो फिर हम रिपोर्ट्स करवाते हैं, और कई बार दवाई गोली बंद करके फिर एक एक गोली शुरू करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी दवाई से ज्यादा साइड इफेक्ट हुई। यही यूजुअली होता है हमारे ट्रीटमेंट में, और काफी सारी हमारी बात हुई, काफी अच्छे से सब लोगों ने पढ़ा और सुनाया, और हमारे रवि भाई ने काफी अच्छे से काफी सारी चीजें पढ़ाई सबको। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग विथ अस। आप सब आए हमारे पास और एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। Ravi, it was good. Thank you, sir. Hello. Thank you, sir. Okay, thank you. Bye bye.